Good morning, students. Uh, Today we are going to start the seventh chapter of Honeydew, that is a visit to Cambridge. Okay, so without delay, let's start the chapter. So this is a story about uh, a journey, a story of a journey. Okay, about written by Firdaus Kanga. He was an Indian uh, author and journalist. Okay, so he had a trip to England. Okay, in Cambridge University, and there he got a chance to take an interview of Stephen Hawking. Okay, a famous reputed scientist, astrophysicist. Okay, Stephen Hawking. So he is sharing in this chapter, in this story, he is sharing his experience of meeting with the Stephen Hawking. Okay, so he has written a book name that the book name is From Heaven on Wheels. Okay, the book that is the name Heaven on Wheels. He had shared his experience in that. This story is a part taken from that book. Okay, and even from Heaven on Wheels. Okay, so let's start the chapter. What it is about. So before you read, this is the story of a meeting between two extraordinary. Okay, two extraordinary people, both of them disabled or differently abled. Okay, disabled or differently abled. Why they are called extraordinary? Because they are special. They have some unique qualities in them. Okay, and disabled, you are well knowing. Okay, and or differently abled, as we now say. Disabled means handicapped, you can say, and in to give respect to that word, actually nowadays we use differently able instead of using disabled. Okay, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a form of paralysis. Okay, he suffered from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching button on a computer. So he can't talk normally as we people do. So how he speaks using his fingers on computer screen. Okay, only his fingers are working, rest part of his body is non working. Okay, so he uses his fingers to scroll and to tap the buttons on the computer, touch the buttons on the computer screen, and then speak to others. Okay, which speaks for him in a machine like voice. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. So he is journalist and writer where in India, that is who is working in Mumbai. Kanga was born with brittle bone. Brittle means weak bones. Okay, ओके कमज़ोर हड्डियों से उनकी हड्डियां कमज़ोर थी दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ child. So during his childhood he lost his legs and all, so he is also a disabled. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair, so he also uses the wheelchair to move from one place to another place. That's why both people are called here disabled. Okay, the two great men exchange thought on what it means to live life in a wheelchair. So they are sharing their ideas, their thought about the living life in this disabled form. Okay, how challenging their life are, and on how the so-called normal people react on to the disabled. And they are also sharing their thought about the normal people, that how normal people react on their
condition. Okay, and normally we see in like normal people generally show their sympathy toward disabled person. Okay, and they try to motivate them. Okay, that is showing their sympathetic behavior towards them. So they are saying that how the people's behavior are from for them. Okay, Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. Okay, so he went to England for some purpose. He had a journey to there. Okay, and then he went to Cambridge. Okay, for some purpose, and there he's saying that it was strange that when I left it had become altogether something else. When he met, when he went to that Cambridge, the situation was different. But when he was leaving the Cambridge, it means when he was leaving the England, the scenario was different. And how it was different? Because he had met Stephen Hawking there. Okay, so it was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is worthy successor to Isaac Newton. Okay, so he was having a walking tour with along with guide. Guide is a person. Okay, when you visit on some places in order to have tour and all, so you will search a person who is guide. Okay, so in every city, in every famous places, there are some guide who make you guide, who show you directions where to go, which place is famous for, which is the best thing to see, to visit and all. So this, the guide, the person who is guiding you, that is called the guide. Okay, so the author, that is Firdaus Kanga, is walking with the guide. Okay, and the guide mentioning that that guide is mentioning about the Stephen Hawking. Actually, Firdaus Kanga was not knowing that Stephen Hawking is also present here. Okay, the guide was mentioned that Stephen Hawking, poor man, and how is mentioning Stephen Hawking, that he is a poor man who is quite disabled now. ठीक है, कैसे वो उसको गाइड उसको कैसे मेंशन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल पुअर मैन, एंड सेकंड थिंग इज कि क्वाइट डिसेबल्ड नाउ. ठीक है, इट मीन्स ही इज नॉट एबल टू डू द थिंग्स नॉर्मली, दैट इज डिसेबल्ड नाउ, दो ही इज वर्दी सक्सेसर. यद्यपि he has got a success, a lot of success, and successor to Isaac Newton. Okay, see, he is considering just after the Newton, whose chair he has at the university. It means he is also present in the university. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, sorry, I forgot, and I started because I had quite just forgotten that this most brilliant and completely paralyzed. What the author thinks about Mr. Hawking is that he's most brilliant and completely paralyzed, and what? Astrophysicist. Astrophysicist means the scholar of astrophysics. Okay, the branch of physics dealing with the stars and planet, that is called astrophysics. And the person who is a scholar, who studies the astrophysics, is known as astrophysicist. So he is it means Stephen Hawking is an astrophysicist. So, and most brilliant and completely paralyzed an astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. Okay, means the author, the journalist Firdaus Kanga, forgotten that Mr. Hawking is also living here. And how he is describing Mr. Hawking? First of all, most brilliant, completely paralyzed, astrophysicist, and then the author of A Brief History of Time. Okay, so this book was written by Mr. Stephen Hawking. Okay, he wrote the book A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever.
ठीक है, मीन्स अभी तक में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो किताब थी वो यही थी, कौन सी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड इट वाज रिटन बाय मिस्टर स्टीफन हॉकिंग। ओके, एंड ही वाज फॉरगेटिंग दैट कि दैट पर्सन इज आल्सो लिविंग हियर ओनली, ठीक है, कि कैम्ब्रिज में वो भी प्रेजेंट है, ये वो भूल गए थे, उनको नहीं मालूम था। When the walking tour was done, when the walking tour was finished, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. और जैसे ही उनका टूर समाप्त हुआ चलने का, पैदल चलने वाला उनका टूर समाप्त हुआ, he rushed to the phone booth, वो बूथ पे भागे, and almost tearing the cord so it could reach me outside, and जल्दी से खींचते हुए, and he took the phone and he phoned Stephen Hawking's house. He called Stephen Hawking, and there was his assistant. There was his assistant online, and I told him that I had come in wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. Okay, so he said to his assistant, Stephen Hawking's assistant, that I have come from India in wheelchair only to write about my travel in Britain. Okay, means I am having a journey in wheelchair to Britain to write about the Britain. I had to see Professor Hawking. Okay, and I came to know about the Professor Hawking, and now even 10 minutes would do. कह रहा है कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, आई वॉन्ट टू मीट हिम जस्ट फॉर 10 मिनट्स, डू हाफ एन आवर, ही सेड। तो वो कहता है कि 10 मिनट आधे घंटे के बराबर होंगे। ओके, सो 10 मिनट्स वुड डू हाफ एन आवर, ठीक है, वो कहता है कि आधे घंटे, ठीक है। He said from 3:30 to 4, and the assistant gave him a time. What was the time? 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजने मिलने का उसने असिस्टेंट ने टाइम दे दिया कि चलो, वो एक्चुअली ऑथर रिक्वेस्टेड टू मीट फॉर 10 मिनट्स ओनली। ऑथर ने रिक्वेस्ट किया कि 10 मिनट के लिए भी अगर मिल जाएंगे तो हो गया रहेगा, तो उन्होंने कहा कि चलो आधे घंटे दिए, ठीक है, आधे घंटे 10 मिनट के बराबर, एंड देन गेव द टाइम फॉर 3:30 to 4, and suddenly I felt weak all over. I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking to, growing up disabled, you get fed up with the people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. Okay, it means कह रहा है कि I was feeling weak. The reason was he was nervous that he is going to meet such a big personality. So कह रहा है ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ है, फेड अप, यू फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, ठीक है, और आप बड़े हुए हो ये लोगों से ये सुनते सुनते कि दैट बी ब्रेव, ओके, यू टू बी ब्रेव, एंड इफ यू हैव करेज अकाउंट, एज इफ यू हैव करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रा अ चेक, ऐसे लगता है जैसे कि आपके पास हिम्मत है बट आप आलसी हो, ठीक है, आप करना नहीं चाह रहे हो, लाइक दैट, हाउ टू ड्रॉ अ चेक, चेक काटने में आप देरी कर रहे हो, इस टाइप का, तो लोग आपको हिम्मत बताते हैं कि बी ब्रेव, ठीक है, करो करो वाला, ठीक है। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, बट द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रांगर, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, किसी अपने जैसे को देखना, एंड अचीविंग समथिंग ह्यूज, then you know how much it is possible, and you reach out further than you ever thought you could. Okay, कह रहा है कि when what make you stronger is that कि looking somebody else like you, अपने जैसे किसी को देखो, like अपने जैसे किसी weak person को कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करते हुए देखो, अचीविंग समथिंग ह्यूज, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा अचीव करते हुए देखो, देन यू कम टू नो हाउ मच इज इट इज पॉसिबल टू अचीव, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, दिस इज पॉसिबल टू अचीव टू मी फॉर, है ना, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और तब आप उस सोच पे पहुंचते हो जितना आप कभी सोचे नहीं होगे, देन यू confidently can think about, yes, you can also do that. Okay, I haven't been brave, and now this is the second day's conversation when he meets to the साइंटिस्ट मिस्टर स्टीफन हॉकिंग। जब वो उनसे मिलते हैं, नेक्स्ट डे का ये कॉन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन स्टीफन हॉकिंग सेइंग दैट आई हैवंट बीन ब्रेव, अब मैं उतना ब्रेव नहीं रहा, आई एम नॉट बीइंग स्ट्रांग नाउ, सेड ही
said his disembodied computer wise. Disembodied means without body, I mean you can say the bodiless computer wise, ठीक है, because his body was not working. How he was talking was how he was speaking only using his finger on the computer screen. So computer, it was a computer wise. The next afternoon means अगले दिन afternoon में means 3:30 to 4 whatever the timing was scheduled, he was meeting to Mr. Hawking. Okay, so Mr. Hawking is saying disembodied that I haven't been brave, अब मैं बहादुर नहीं रहा. I have had no choice. कह रहा है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मैं बहादुर नहीं था बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था इसके अलावा. Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. कह रहे हैं कि श्योरली मैं ये कहना चाह रहा था. कौन? फिरदौस कांगा सोच रहे हैं कि श्योरली आई वांटेड टू से, मैं कहना चाह रहा था कि लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस. कह रहा है कि जिस तरीके से आप मतलब क्रिएटिवली यू आर लिविंग एंड यू आर अचीविंग सो मच थिंग्स इन योर लाइफ with this disintegrating body, it means that is destroying body, and you are saying this is choice. But I keep quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. But Firdaus Kanga was quiet. And what was the reason behind his quietness? That I spoke to him forcing, I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of moment left to him. कह रहा है कि जब भी मैं उससे बोल रहा था तो मुझे हर बार बोलने पे खुद को गिल्टी फील होने लग रहा था, क्योंकि जब भी मैं कुछ उनसे बोल रहा था तो बेचारे अपनी उंगलियों को इधर उधर करके, एंड देन ही वाज सर्चिंग द वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑन कंप्यूटर टू रिप्लाई मी. ठीक है कि वो अपने रिस्पॉन्स करने के लिए देन वो वर्ड्स को ढूंढने लग जाते थे, तो जो कि देखने में बहुत खराब लगता था. जो कुछ भी उनके पास थोड़ा सा टाइम मिलता था, बिकॉज इट वॉज द लेस टाइम दैट वॉज शेड्यूल्ड टू मीट हिम. ठीक है, तो बहुत कम टाइम में भी वो बेचारे जल्दी जल्दी इधर उधर करके अपनी उंगलियों को, एंड ही वॉज सर्चिंग द बटन टू रिस्पॉन्ड. दैट्स वाई आई वॉज फीलिंग गिल्टी, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था. सो आई केप्ट क्वाइट. हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, ठीक है, अपनी लंबी जो कमजोर उंगलियां थी उनको इधर उधर करके, एंड देन ही वाज सर्चिंग द बटन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. कह रहा है कि उनकी जो आंखें थी हर बार, एवरी सो ऑफन है ना, अक्सर ही उनकी आंखें जो है वो बंद हो जाया करती थी. फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन में हताशा और थकान. ठीक है, हताशा और थकान के मारे उनकी आंखें जो है बंद हो जाया करती थी. शट एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड बायोन्ट with thought that come out in frozen phrases and sentences stiff and as corpses. Corpses means dead body. Firdaus Kanga is saying that कि his eyes was shutting in frustrated exhaustion, थक के हताशा से उनकी आंखें बंद हो जा रही थी. एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम, उनके सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, उनकी ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंग्विश मैं फील कर सकता था. लाइक द माइंड बायोन्ड विथ थॉट. ठीक है, उनकी जो दिमाग था, उनका जो माइंड था, इट वाज बायोन्ड विथ थॉट मीन्स फील्ड ऑफ थॉट्स, बहुत सारी थॉट से भरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था. इट मीन्स ही हैज अ लॉट टू से, बट द थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, लेकिन बहुत ही कम जमे हुए वाक्यों में. ठीक है, यू कैन से कि एक ऐसे रूखे सूखे वाक्यों में, छोटे मोटे ऐसे ही वाक्यों में उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है. एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज कॉप्सेस, जैसे कि मरी हुई है. ठीक है, मरी हुई बॉडी, लाश की तरह के उनके शब्द निकल रहे थे. इसका मतलब ये है कि जितना उनके दिमाग में चल रहा था, जो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, जो थॉट्स उनके माइंड में थे, ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज थॉट्स फ्रीली.
ठीक है, वो आज़ादी से, आराम से, आसानी से, इजीली अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. व्हाट ही हैड टू बी डन कि ही वॉज सर्चिंग द बटन्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू शो हिज एक्सप्रेशंस. ठीक है, उनको बटन ढूंढने पड़ते थे कि अब कैसे कहें, क्या कहें वाला. ठीक है, and his fingers was also not working well because he was getting old and weak and all these things maybe will be the reason. Okay, that's why a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? कह रहा है now फिरदौस सांगा is asking the question to him कि कह रहे हैं फिरदौस सांगा कि a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. ठीक है, कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि जिस इस तरीके के जो हैंडीकैप्ड या फिर जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं. ठीक है, मीन्स पूरी तरीके से वो अनहैप्पी होते हैं, वो किसी चीज़ को लेके खुश नहीं रहते हैं. आई सेड आई नो दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, और मैं जानता हूँ कि मेरे लिए वो सही नहीं है, बिकॉज आई ऑफन बी हैप्पी. एंड देन उनसे पूछता है कि आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप कभी खुद में अंदर ही अंदर हंसते हैं. देन मिस्टर हॉकिंग इज रिस्पॉन्डिंग अबाउट 3 minutes लेटर. ठीक है, लगभग 3 मिनट के बाद ही रिस्पॉन्डेड. ठीक है, लगभग 3 मिनट लिया मिस्टर हॉकिंग ने रिस्पॉन्ड करने के लिए. एंड देन ही सेड आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. ठीक है, कह रहा है कि हाँ मैं मुझे उस टाइम खुशी महसूस होती, उस टाइम मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे हंसी आती है. व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब पीपल मेरे ऊपर दया खाते हैं एंड वो मुझे संरक्षण देने की कोशिश करते हैं, हाँ उस टाइम मुझे हंसी आती है. ठीक है, मीन्स यस आई लाफ व्हेन इट इज अम्यूजिंग. अम्यूजिंग मीन्स एंटरटेनिंग. ठीक है, वो मुझे अम्यूज करता है जब पीपल हमें संरक्षण देने की बात करते हैं. व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. एंड देन अगला क्वेश्चन क्या है फिरदौस सांगा का कि एंड यू फाइंड इट अनोइंग, क्या आपको गुस्सा आती है, नाराजगी होती है जब व्हेन समवन लाइक मी, जब कोई मेरे जैसा कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, जब मेरे जैसा कोई आ करके आपको अपने काम में डिस्टर्ब कर दे. देन यू अनॉय और नॉट. द आंसर फ्लैश्ड एंड देन ही आंसर्ड यस. कहते हैं हाँ बुरा तो लगता है. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. उन्होंने कहा yes and then he smiled his one-way smile और then he smiled at me. I knew without being sentimental or silly that बिना sentimental हुए, बिना emotional हुए, बिना बेवकूफ़ी के I was looking at, I mean ये I was looking at the one of the best, one of the most beautiful person in the world. दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति को मैं यहाँ पे देख रहा था. A first glimpse of him is shocking. और उनका जो पहली झलक था वो बहुत शॉकिंग था. Because he is like a still photograph. ठीक है, और उनकी जो पहली झलक, जब वो पहली बार उनसे देखा, जब उनको देखा था तो it was shocking. It was like स्टिल फोटोग्राफ, जैसा कि वो फोटोग्राफ में दिखते हैं. एक ही फोटोग्राफ ज़्यादातर उनका वायरल होता रहता है कि थोड़े से अजीब से टेढ़े मेढ़े से, बिल्कुल वैसे दिख रहे थे. बट नाउ ही इज व्हेन ही इज स्माइलिंग एंड ऑल ही इज लुकिंग लाइक अ मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड. As if all those pictures of him in the magazines and newspapers have turned the 3-dimensional. और ऐसा लग रहा था जब फर्स्ट ग्लिम्स कैसा था कि जो जैसे जो सारे उनके पिक्स मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर में आते हैं उन्हीं को 3-dimensional कर दिया गया है. ठीक है, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प. तब आप देखोगे कि उनका जो हेड है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या हुआ है, ट्विस्टेड है, साइडवे, एक ही तरफ लुढ़का हुआ है. एंड इट इज इनएक्टिव. ठीक है, स्लम्प मीन्स इनएक्टिव, मंद है. ठीक है, एंड टॉर्सो, टॉर्सो मीन्स अदर अपर बॉडी पार्ट. ठीक है, जो टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और जो ऊपर का जो भाग है उनके, ठीक है, शरीर के ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या है, श्रंक, सिकुड़ा हुआ है, इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. ठीक है, ब्लू शर्ट में वो सिकुड़ा हुआ है. द वेस्टेड लेग्स, और बर्बाद हो चुके पैर,
You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. And when you look at his eyes, जब उनकी आंखों को आप देखो तो ऐसा लगता है कि विच कैन स्पीक स्टिल, वो जो अभी भी बोल सकती हैं, ठीक है। आप उनकी आंखों में देखोगे तो मिलेगा कि उनकी आंखें अभी भी बोल रही हैं, अभी भी बोल सकती हैं। एंड व्हाट, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और उनकी आंखें क्या कह रही हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है उनको देख के कि उनकी आंखें कुछ बहुत बड़ा और बहुत अर्जेंट कुछ कह रही हैं, ठीक है। इट इज हार्ड टू टेल व्हाट, लेकिन ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। बट आप एकदम हिल जाओगे उनको देख करके, कांप जाओगे, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, बिकॉज आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा, यू हैव सीन समथिंग दैट यू नेवर थॉट कुड बी सीन, ठीक है, जो आप कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कभी हो भी सकता है, ठीक है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न whose walls are before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. Sorry. Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside. और आप बिल्कुल एक लैंटर्न की तरह, वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक लैंटर्न की तरह दिखते हैं, जिसकी वॉल्स जो हैं वो बिल्कुल पतली सी होती हैं, और आपको अंदर क्या दिखती हैं, सिर्फ ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, और अंदर क्या दिखती है, सिर्फ लाइट और लाइट ही दिखती है। लैंटर्न का जो आउटर वॉल है वो आप नहीं देख पाते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखता है, लाइट दिखता है। इनसाइड इज द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन, और वो क्या होता है, मैन का इनर ग्लो, या फिर आंतरिक जो उसका प्रकाश होता है वो होता है। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडो, और बॉडी क्या होता है कि ये बिल्कुल इरेलीवेंट, कोई इसका मतलब नहीं है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, और ये छाया का, शेडो का एक केस है, मतलब ढांचे जैसा ही है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। बट एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज इनर ग्लो, इनकैंडिसेंस, इनर ग्लो, इनर लाइट जो है वो एक्चुअली मतलब की चीज़ होती है, तो आप उसे देखो। So that I no believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory. So that I know, so that I, जो कि मैं, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, जो कि अनंत आत्मा में विश्वास नहीं रखता है, कि मतलब आत्मा है, अनंत है, ये वो चीज़ें, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। नो दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़, और वो मुझे मालूम है कि ये हम सब के अंदर है, वो एक लाइट जो है, जो प्रकाश है, ठीक है, वो हम सब के अंदर है। एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी, और सबके एवरीथिंग एल्स एंड एसेसरी, बाकी चीज़ें जो हैं वही जो लाइट है, इटर्नल ग्लो है, एक्चुअली दैट इज़ द रेलिवेंट थिंग। बाकी चीज़ें बस एक्सेसरी हैं, ठीक है, बस हेल्पिंग के लिए हैं, बाकी और कुछ का मतलब है नहीं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले ही पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, डिसेबल होने में सबसे बेस्ट थिंग क्या है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। तो मिस्टर हॉकिंग जवाब देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल होने में कोई अच्छाई है, मुझे नहीं लगता कि अपंग होने में भी कुछ अच्छाई होगी। आई थिंक आई सेड डू यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं और फिर कहते हैं, मैंने कहा कि आई थिंक, मुझे लगता है कि यू डू डिस्कवर, आपको कम से कम ये तो खोज कर ही लिए होंगे आप कि दुनिया में कितनी दया है। हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कितने दयालु लोग हैं, कितना दया है, कम से कम डिसेबल होने के बाद ये तो पता लग जाता है, ठीक है। जब लोग अपनी मर्सी शो करते हैं आपके साथ, जब सिंपैथी शो करते हैं, देन यू कम से कम आपको ये तो मालूम हो ही गया होगा। यस ही सेड, कहते हैं वो कि हाँ ये तो पता लग गया। इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन।
नो शेड्स और नो टोन। कह रहा है कि ये उनका जो वॉइस सिंथेसाइजर था, सिंथेसाइजर मीन्स वो जो कुछ भी उनको कहना होता था तो एक कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू कहते थे, बटन के थ्रू कहते थे, तो एक वॉइस सिंथेसाइजर था उनके कंप्यूटर में जिसके थ्रू जो भी कुछ वो कहना चाहते थे वो प्रोड्यूस होता था। तो कह रहा है कि एक डिसएडवांटेज था उसका, ठीक है, कि जो जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, हिज वॉइस इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कोई इन्फ्लेक्शन नहीं शो करता था, कोई शेड नहीं शो करता था, कोई टोन नहीं शो करता था। मतलब कि फॉल एंड राइज, ठीक है, मीन्स आदमी खुशी से वे वर्ड कह रहा है कि दुख के साथ वर्ड कह रहा है, ठीक है। क्या टोन है उसका, आराम से कह रहा है, जल्दी से कह रहा है, दुख में कह रहा है कि सुख में कह रहा है। एक ही चीज हम अलग अलग तरीके से अलग अलग टोन में कह सकते हैं। लाइक इफ यू आर आस्किंग समथिंग, क्या क्या अगर मान लो एक कुछ कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, इस टाइप से एक अगर हम कह रहे हैं नहीं देंगे, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट कि नहीं देंगे। एंड अगर आप पूछो नहीं देंगे, so this is the tone is here describing that you are asking the question। जो हमारा टोन है उससे पता चल रहा है कि एक बार हम सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं नहीं देंगे, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ये हमारा टोन बता रहा है। अगर हम कह दें नहीं देंगे, इट मीन्स कि हमारा टोन ये डिफाइन कर रहा है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शन। तो हम अपने लैंग्वेज में इन्फ्लेक्शन शो करते हैं, राइज एंड फॉल। लेकिन उनका जो वॉइस सिंथेसाइजर था वो राइज एंड फॉल नहीं शो कर रहा था। नो शेड नो टोन, कोई टोन कोई शेड वगैरह नहीं शो करता था, बस सिंपल वर्ड जो उन्होंने लिखा वो ऐसे बोल दिया जाता था। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। और कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है, कि हाउ ही टेल हाउ इंथुसियास्टिकली मीन्स हाउ एक्साइटिंगली, ठीक है, एक्साइटेडली, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे और हमारे साथ एग्री कर रहे थे, ठीक है। वो उनसे पूछता था, उनसे पूछा था कि क्या नाम है, कम से कम आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि दुनिया में कितनी दया है, ठीक है। कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग दिखाने के लिए, मोस्टली लोग दिखाने के लिए ही सिंपैथी शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछता है, तो एकदम वो इस चीज़ से एकदम एग्री थे, बिकॉज ही ऑल्सो फेस द सेम थिंग इन हिज लाइफ, ठीक है। सो ही सेड कि यस, ठीक है। एंड द यस वॉज फॉर एक्साइटमेंट, वो बहुत एक्साइटेडली उन्होंने कहा था। लेकिन अफसोस की बात थी कि उनका जो सिंथेसाइजर था वो उसको इन्फ्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, ओके। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30-minute count। कह रहा है कि हर बार मैं अपने चेयर को थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर रहा था एंड टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, और हर बार अपनी कलाई को ऐसे करके टाइम देखता था, ठीक है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट, मैं हर वो मिनट 30 मिनट का मीन्स 30 मिनट का हर मिनट जो है वो मैं काउंटेबल बनाना चाहता था, मीन्स उपयोगी बनाना चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ दो हाफ एन आवर, ओके। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। अब मैं अपने बॉडी का जो पॉसिबिलिटी था, जो एक्सिलरेशन था कि हाँ इतना कर सक, कैपेसिटी जो था, ठीक है, उसके बारे में मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा था, ठीक है। जो एक्साइटिंग था मेरी बॉडी का, और जो पॉसिबिलिटी था कि हाँ आई कैन डू दैट, ठीक है। सो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज इन ह्यूज रिलीफ, ठीक है, मुझे बहुत आराम मिल रहा था, मैं उस चीज़ से संतुष्ट था कि चलो ठीक है कर लूँगा वाला। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन वॉट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। और उस टाइम ये लगा था हाउ लिटिल इट मैटर्ड, कितना कम मैटर करता है कि मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा या मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, मुझे उस टाइम बहुत छोटी चीज़ लग रही थी, मुझे लगा था कि मैटर ही नहीं करता, या फिर अगर मैटर करेगा तो बहुत कम मैटर करेगा कि मैं कभी चल नहीं सकता या मैं कभी खड़ा नहीं हो सकता, ओके। इट मीन कि फिरदौस सांगा वॉज ऑल्सो बींग इंस्पायर्ड फ्रॉम मिस्टर स्टीफन हॉकिंग। I told him how he had been an inspiration beyond click for me and surely for others. Did that thought help him?
कह रहा है कि आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिक फॉर मी। कह रहा है कि अगर मेरी मूर्खतापूर्ण बातों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा मैंने उनको बताया कि वो कितने इंस्पायरेबल हैं, ठीक है। ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन, कितने ज़्यादा इंस्पायरेबल है हमारे लिए, एंड स्लोली फॉर अदर्स, और बाकियों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये थॉट उनके उनके लिए हेल्पफुल था? नो, ही सेड, उन्होंने कहा कि नहीं। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैं ये क्वेश्चन पूछा हूँ। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. कह रहे हैं कि जब आपकी बॉडी, when your body is a claustrophobic room, claustrophobic means anxiety disorder. ये क्या होता है बेटा? Anxiety here I think given, yes, a very small and suffocating, an abnormal fear of being in an enclosed space. अगर किसी enclosed space या फिर confined space like लिफ्ट, ठीक है, आप किसी लिफ्ट में चले जाओ कन्फाइंड स्पेस में, तो एक एग्जाइटी डिसऑर्डर होता है कुछ लोगों को, जिसको क्या कहते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो कह रहे हैं कि व्हेन योर बॉडी इज ए क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर एंड नैरोअर, जब आपको आपका जो बॉडी है वो एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम की तरह हो जाए, जिसमें घुटन महसूस होने लग जाए, जिसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लग जाए, उस तरीके का बॉडी हो, और जो उसका वॉल वो दिन पर दिन और नैरो होता जाए, पतला होते चला जाए, कन्फाइंड होता चला जाए, ठीक है। तो इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल, तो इस टाइम ये आपको महसूस नहीं होने देता दैट देयर आर पीपल आउटसाइड, जो कि उस रूम के बाहर कुछ लोग हैं और वो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। एंड स्माइलिंग विद द एडमिरेशन, एडमिरेशन मीन्स प्रेज, ठीक है, प्रशंसा कर रहे हैं, इस तारीफ से मुस्कुरा रहे हैं, दैट यू टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, आपको अभी तक सांस लेते हुए देख करके वो खुश हैं। दे आर प्रेजिंग, कि आप इतने कन्फाइनमेंट में हो करके, इट मीन्स हिज बॉडी वॉज वर्थलेस फॉर हिम, हिज बॉडी वॉज नॉट वर्किंग फॉर हिम, उनके लिए कोई काम उनका साथ नहीं दे रही थी। अब वो लग रहा था कि मतलब अब मरे कि तब मरे, इस वाले कंडीशन में थे। बट इतने मुश्किल कंडीशन में भी, इतने दुखदाई कंडीशन में होकर, क्रिटिकल कंडीशन में हो करके भी वो ही इज स्टिल ब्रीदिंग, वो अभी भी सांस ले रहे हैं, इट मीन्स अभी भी जिंदा है। इस बात से लोग खुश हैं, वो उनको महसूस नहीं होता है, ठीक है। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? Then Firdaus Sanga is saying कि क्या आप जो डिसेबल पीपल हैं, डू यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू देम, क्या आप उनको कुछ एडवाइस करना चाहते हैं? दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, जो कि उनके जीवन को और थोड़ा सा बेहतर बना सके, ऐसी कोई एडवाइस देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल को? देन Stephen Hawking said that they should concentrate on what they are good at. What is the advice that Mr. Hawking is giving to the disabled people is that कि they should concentrate on what they are good at. उनको उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिस चीज़ में वो बेहतर हैं, अच्छे हैं. I think things like the disabled Olympics are a waste of things like disabled Olympics are a waste of time. और मुझे लगता है कि थिंग्स मतलब लाइक डिसेबल्ड ओलंपिक्स, ठीक है. डिसेबल्ड ओलंपिक्स मीन्स आप उसके जो ओलंपिक्स हैं डिसेबल्ड लोगों के लिए, या फिर उस तरीके से कि उसी के भीड़ में आप जाओ कि आप डिसेबल्ड है यही करते रह जाओ. इट अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्या है? टाइम की बर्बादी है कि आप इसके चक्कर में रहो कि हम तो डिसेबल्ड है और उसी डिसेबल्ड की भीड़ में ही चलते जाओ, ठीक है. दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. आई थिंक यू शुड कंसंट्रेट इन व्हाट यू आर गुड एट. आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए रादर देन कि कंसंट्रेटिंग ऑन आई एम डिसेबल्ड. यू शुड कंसंट्रेट ऑन द थिंग दैट यू आर गुड एट. जिस चीज़ में आप बेहतर हैं, जिस चीज़ को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए. ओके, आई नो व्हाट यू मीन.
And I said, means Firdaus Sanga is saying, I know what you mean. मुझे मालूम है आपका क्या मतलब है. I remembered the year. I remembered the years I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was. ठीक है. एंड वो बता रहे हैं, अब स्टीफन हॉकिंग बता रहे हैं कि आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार. मुझे याद है वो दिन जब मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा टाइम मैं दे रहा था, एंड ट्राइंग टू प्ले एन स्पेनिश गिटार, ट्राइंग टू प्ले एन स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज. जितना बड़ा मैं था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा क्या था, स्पेनिश गिटार था. एंड आई वॉज ट्राइंग टू प्ले दैट, एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड unstringed it one night. Gleefully means happily. कह रहा है कि एंड आई वॉज हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग इट वन नाइट. और एक दिन मैंने उसके सारे धागे होगे, सारे स्ट्रिंग्स जो है अनस्ट्रिंग कर दिए, सारे स्ट्रिंग्स उसके खोल के रख दिए. इट मीन्स ही डिनाइड दैट प्लेइंग गिटार. ओके, स्टार्टिंग में क्या था कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था उस स्पेनिश गिटार को बजाने के लिए, जो कि उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, साइज में. एंड फाइनली क्या किया कि एक बार बहुत खुशी खुशी उसने क्या किया, उन्होंने कि उसके गिटार के सारे स्ट्रिंग्स जो है ओपन करके और रख दिए. मीन्स आई हैव नॉट टू प्ले इट एनी मोर. ठीक है, अब मुझे और ज़्यादा इसको और नहीं बजाना है. ठीक है, तो उस टाइम जो खुशी मिली थी, ठीक है, उसके बारे में शेयर कर रहे हैं कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था. सवाल द हाफ आर वॉज अप, और अब क्या है, आधे घंटे लगभग समाप्त होने को थे. आई थिंक आई हैव एनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर. और मैं ग्रीनिंग मीन्स ब्रॉड स्माइल, ठीक है, और एक मुस्कुराहट के साथ मैंने उनसे कहा कि आई थिंक आई एनॉयड यू, मुझे लगता है मैंने आपको ज़्यादा नाराज कर दिया. थैंक यू फॉर, एंड देन सेड कि थैंक यू, धन्यवाद. ओके, स्टे आई वेटेड, स्टे आई वेटेड, उन्होंने कहा रुको, मैंने वेट किया. हैव सम टी, उन्होंने कहा कि हैव सम टी, कुछ चाय हो जाए. आई कैन शो यू द गार्डन, मैं आपको गार्डन दिखा सकता हूँ. एंड मीन्स स्टीफन हॉकिंग इज ऑफरिंग हिम कि मैं आपको गार्डन दिखा सकता हूँ, गार्डन घूम लीजिए, एंड हैव सम टी, कुछ चाय पानी ले लीजिए. द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, एंड इट वॉज अ गार्डन बट इट वॉज बिग एज अ पार्क, ये पार्क जितना बड़ा था. बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I does keep out of the way. ठीक है, rumbling means continuously making noise, continuous noise, ठीक है, साउंड कह सकते हो आप. जो उनका व्हील चेयर था वो एक्चुअली कंटिन्यूअसली साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, दैट इज कॉल्ड रम्बलिंग. तो कह रहा है कि गार्डन जो है बिल्कुल पार्क जितना बड़ा था, बट स्टीफन हॉकिंग कवर एवरी इंच, स्टीफन हॉकिंग ने हर इंच, उसके प्रत्येक इंच को कवर किया. रम्बलिंग अलोंग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, उनका जो मोटराइज्ड व्हील चेयर था उस पर चलते चलते उन्होंने हर इंच को कवर किया. वाइल आई डॉज टू कीप आउट ऑफ द वे, जबकि मैं बहाना बना करके आधे रास्ते से हट गया. ठीक है, इट मीन्स कि द ऑथर वॉज नॉट एबल टू कवर ईच एंड एवरी इंचेज ऑफ दैट गार्डन बिकॉज ही वॉज एग्जॉस्टेड अर्लियर. लेकिन स्टीफन हॉकिंग के अंदर जो है, जो इच्छा शक्ति है, यू कैन से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थी. एंड ही कवर्ड थ्रू आउट द गार्डन. वी कुडंट टॉक वेरी मच, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए. द सन मेड हिम साइलेंट, और सन ने उन्हें साइलेंट कर दिया बिकॉज इट वॉज नाउ द सनसेट टाइम. ठीक है, शाम हो गई थी, सो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए. द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर. ओके, तो जो उनके स्क्रीन पे जो भी लेटर्स थे वो क्या होने लगे, शाइनिंग के साथ अब डिसअपियर होने लगे, गायब होने लग गए. ठीक है, बिकॉज ही वॉज चूजिंग द लेटर्स टू टॉक ना, ही वॉज choosing the letters to speak his words. Okay, so now those letters were disappearing one by one. Okay, as the conversation was stopped, an hour later we were ready to leave. और 1 घंटे के बाद हम जाने के लिए
तैयार हुए, वी वर रेडी टू लीव। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं मालूम था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना मैं उन्हें किस कर सकता था ना मैं रो सकता था। ओके, आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, मैंने उनके कंधे को टच किया एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैं, समर इवनिंग था, ये गर्मी का मौसम था, शाम का वक्त था, सो मैंने उनके कंधे पे बस हाथ रखा और वहाँ से बाहर की तरफ, व्हील्ड आउट मीन्स अपने व्हील चेयर को लेके मैं बाहर की तरफ आने लग गया। दो ही वॉजेंट, सॉरी, आई लुक एट बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉजेंट, कह रहा है कि मैंने वापस से पीछे देखा एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, ठीक है, मैं, मुझे मालूम था कि वो वेव कर रहे थे, इट मीन्स वो बाय कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे। दो ही वॉज नॉट, यद्यपि वो नहीं कर रहे थे, बिकॉज ही कुड नॉट, ठीक है, वो फिजिकली वो नहीं कर सकते थे, बट इंटरनली आई वॉज नोइंग दैट कि ही वॉज वेविंग, वो बाय कर रहे थे इंटरनली, जबकि वो फिजिकली नहीं कर रहे थे। Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving toward, ठीक है, उनको देखते हुए एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, मैं अपने बहादुरी और मतलब इस तरीके से जा करके मिल लेना और ये सारी चीज़ों को फील करते हुए, द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, जिसको मैं खुद से बस खुद ही महसूस कर सकता था, एंड आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं खुद में विश्वास कर सकता था अकेले ही, ठीक है, एंड नाउ आई वेंट एंड आई सॉ दैट, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ, और मुझे ये मालूम था कि मेरी जर्नी जो है अब यहीं पे ओवर हो गई है, ठीक है। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल चैप्टर, आई होप यू इंजॉयड द चैप्टर। ओके, सो फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।